Hello students of 12th standard. Today I am going to continue with the types of elasticity of demand. मैंने ऑलरेडी 4 टाइप्स बताया था जिसमें परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाँ यूनिटरी इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड था. अब हम लोग करने जा रहे हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, राइट. तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ओके. व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू लेस देन प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब परसेंटेज चेंज प्राइस में परसेंटेज चेंज होने की वजह से डिमांड में कम चेंजेस हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक. फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड टू 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांड. 50% भाव में कम हो रहा है, प्राइस में कम हो रहा है, लेकिन डिमांड में 25% बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन 1 होता है, इट इज़ लेस देन 1, ओके. यहाँ पे प्राइस जो है OP से OP1 हो गया और डिमांड जो है OQ से OQ1 हो गया. मीन्स डिमांड कर्व इज शिफ्टेड टू द राइट साइड, ओके. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन फिगर व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OP, देयरफॉर डिमांड कर्व हैज स्लिपर स्लोप एंड शिफ्टेड टू राइट साइड, ओके. दिस विल बी द आंसर. एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ. When percentage change in price lead to less than proportionate change in quantity demand, demand is said to be relatively inelastic. तो परसेंटेज चेंज जो प्राइस में है, प्रोपोर्शनेट चेंज क्वांटिटी डिमांड से कम होता है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड. एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड टू 25% राइज इन प्राइस, राइट. तो यहाँ पे जो ED हो लेस देन 1 होता है, ED जो है लेस देन 1 होता है, राइट. यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया. In figure 3.15, when price falls from OP to OP1, demand rises from OQ to OQ1. Therefore, the demand curve has steeper slope. Okay. Students, you have to complete this table. Degree of elasticity of demand दिया है, types of elasticity of demand दिया है, description percentage दिया है, ठीक है. तो how to complete this table? Just look here. ED is equal to 0. That means perfectly inelastic demand. Change in price does not affect the demand. इसलिए price change होने का demand में कोई effect नहीं आता. AD is equal to 1, unitary elastic demand. Change in demand is equal to change in price. AD is more than 1, that is relative elastic demand. Change in demand is more than the change in price, correct. AD is less than 1, relative inelastic demand. Change in demand is less than change in price. AD is equal to infinite, that is called perfectly elastic demand. यहाँ पे perfectly elastic demand आएगा. Perfectly elastic demand. Straight change in price brings infinite change in demand. Slight change in price brings infinite change in demand. Student, you have to complete this table, okay. मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है. AD इज इक्वल टू 0 कब रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में. चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट द डिमांड. ED इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक. चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस. ED is more than 1, that is called relatively elastic demand. Change in demand is more than the change in price. AD is less than 1, that is relatively inelastic. Change in demand is less than change in price. ED is equal to infinite, perfectly inelastic demand. Slight change in price brings infinite change in demand, okay. Method of measuring price elasticity of demand, जो मेथड है प्राइस elasticity of demand का, उस मेथड को स्टडी करेंगे. पहला मेथड है रेशियो और परसेंटेज मेथड, राइट. तो ratio method is developed by Professor Alfred Marshall. According to this method, elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in demand by percentage change in price, correct. Ratio method जो प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया. According to this method, elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in demand by percentage change in price. Percentage change in demand को percentage change in price से डिवाइड करते हैं इस मेथड में. Percentage method is also known as arithmetic method. Price elasticity is measured as, परसेंटेज मेथड को अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ED का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इज दिस क्लियर. और सेकेंड मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. दूसरा मेथड जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है. दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंजेस कंपेयर्ड, मतलब टोटल खर्चा जो है प्राइस चेंज होने के पहले और प्राइस चेंज होने के बाद दोनों कंपेयर करते हैं. हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, प्राइस इंटू टू क्वांटिटी डिमांड, राइट. दिस विल बी द पॉइंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल. ये मेथड जो प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया. इस मेथड में टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंजेस कंपेयर्ड, मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है और प्राइस चेंज होने के पहले प्राइस चेंज होने के बाद कंपेयर करते हैं, राइट.
हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का मल्टीप्लाई, राइट। इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज़ गिवन फॉलोइंग प्रीपोजिशन। नीचे दिया हुआ कुछ पॉइंट्स दिया है मार्शल ने। Relative elastic demand, when with a given change in price of commodity total outlay increase, elastic demand is greater than 1। जब जो प्राइस चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर टोटल आउटले बढ़ता है तो उसको बोलेंगे रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। व्हेन गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीज, टोटल आउटले इंक्रीज मतलब टोटल परचेज इंक्रीज, इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे ईडी जो है ग्रेटर देन 1 होता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, व्हेन प्राइस फॉल्स और राइज टोटल आउटले डज नॉट चेंज। प्राइस चेंज होने की वजह से टोटल आउटले चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू 1 होता है। व्हेन विथ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल आउटले डिक्रीज, यहाँ पे टोटल आउटले डिक्रीज होता है। इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1, यहाँ पे ईडी जो है लेस देन 1 होगा। इज दिस क्लियर? 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर प्राइस चेंज होने की वजह से टोटल परचेज या एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसको बोलेंगे रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे ईडी जो है 1 से ज़्यादा रहेगा। जब प्राइस चेंज होने की वजह से टोटल आउटले में कुछ भी चेंजेस नहीं होता उसको बोलेंगे ईडी इज इक्वल टू 1। रिलेटिव इलास्टिक में व्हेन प्राइस चेंज होने की वजह से टोटल आउटले टोटल परचेज घटता है उसको बोलेंगे रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे ईडी इज लेस देन 1। इज दिस क्लियर? देन स्टूडेंट टुडे यू हैव टू टुडे एज अ होमवर्क यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, जिसमें आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है, अब बाद में इसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल एज अ होमवर्क, आंसर दिस टेबल। मैंने टेबल कंप्लीट करके दिया हुआ है। यू हैव टू राइट द मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिक डिमांड। पहला मेथड है रेशियो और परसेंटेज मेथड। ये पैराग्राफ लिखना है, ये परसेंटेज, ये और ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद और ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है जिसमें ये प्रिपेयर करना है, ये प्रिपेयर करना है, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। और ABC ये तीनों पॉइंट्स भी लिखना है, ओके। देन स्टूडेंट फॉर टुडे एज अ होमवर्क रिलेटिव इलास्टिक डिमांड का शॉर्ट नोट्स टेबल कंप्लीट करना है और 2 मेथड करना है जिसमें परसेंटेज मेथड है और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। इज दिस क्लियर? इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।